الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وبارك لنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حضرات اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور سعادت دارین کے ٹمٹماتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق والدین کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بے ادبی سے بات نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اور ان کو اف بھی مت کہو اور انہیں نہ جھڑکو، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرو اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میرے پروردگار جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میرے ساتھ مجھ پر رحم کیا اس طرح آج تم دونوں پر رحم فرما. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ بے ادبی کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو ستاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن والدین کی بدسلوکی اس سے مستثنا ہے. اگر کوئی اپنی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. دوسری مرتبہ پوچھا کہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. اسی طرح 3 مرتبہ پوچھا اور آپ علیہ السلام نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. ایک ماں تھی، اس کے ایک بیٹا تھا.
वो बेटा अपनी माँ की वजह से कई मर्तबा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसकी माँ की एक ही आंख थी। वो अपनी माँ के साथ घूमने के लिए भी नहीं जाता था। क्यों? इसलिए कि अगर मेरी माँ के साथ मुझे कोई देखेगा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मेरी माँ के तो एक ही आंख है। उसकी माँ घर के इखराजात को चलाने के लिए एक स्कूल के अंदर बावर्ची का काम किया करती थी। इत्तेफाक ये हुआ कि वो लड़का भी उसी स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहा था। माँ बाप को तो अपनी औलाद की फिक्र होती है। एक दिन ये हुआ कि दौरान तालीम उसकी माँ क्लास के अंदर जाती है ताकि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ तालीम हासिल कर सकूं, अपने बेटे के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है या सिर्फ खेल कूद रहा है। उसकी माँ जाती है और उसका साथ से मालूम करती है कि मेरा बच्चा लिख पढ़ रहा है या सिर्फ खेल कूद कर रहा है। वो बच्चा अपनी वालिदा से चल रहा था, अपनी वालिदा को देखकर शर्मिंदा हो रहा था और अंदर अंदर उसको कोस रहा था, बुरा भला कह रहा था। क्यों? इसलिए कि मेरी माँ एक आंख की है, ये मेरी क्लास में क्यों आई? जब दूसरे दिन वो लड़का स्कूल के अंदर जाता है, अभी तो बस क्लास के अंदर बैठता ही है, तो उसका एक साथी आता है। वो कहता है, कल एक आंख वाली जो एक बावर्चन आई थी, क्या वो तेरी माँ थी? उसने कहा, जी हाँ। और मैं ये अल्फाज सुनकर इस तरह शर्मिंदा हुआ कि शर्म के मारे पानी पानी हो गया और मैं दिल में ये सोच रहा था, काश कि मैं ये दिन देखने से पहले ही मर चुका होता तो आज मुझे दिल्लती बर्दाश्त ना करनी पड़ती। जब दूसरे दिन वो लड़का अपने घर जाता है तो अपनी माँ से कहता है, तूने मुझे दोस्तों के सामने तमाशा बना दिया है, तू मर क्यों नहीं जाती? अरे एक आंख वाली माँ से बेहतर था कि मेरी कोई माँ ही नहीं। उसकी माँ बेचारी उसकी गुफ्तगू चुपचाप सुन रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार उसके पास से उठकर चली जाती है और उसको अपनी सख्त कलामी पर भी कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी माँ की वजह से एक किस्म की घुटन महसूस कर रहा था और उसे अपनी माँ के जज्बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसने अंदर ही अंदर ये प्लान बना लिया था कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो अपनी माँ से दूर चला जाऊंगा ताकि मुझे इसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। आखिर माँ तो माँ ही होती है। वो उसके बारे में गौर व फिक्र करती रही, उसके बारे में फिक्रमंद होती रही कि मेरा बच्चा किस तरह पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। एक दिन ये हुआ कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में उस बच्चे का दाखिला हो गया। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा था। एक दिन आया कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल कर अपने वतन की तरफ गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे माकूल मुलाजमत मिल गई। उसने एक शानदार आलीशान मकान खरीदा और शादी की और वहीं रहने लगा। वो बच्चा अपनी जिंदगी से बड़ा मुतमईन था। न उसे अपनी माँ की याद आई, न उसने अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाया। उसके कई बच्चे हो चुके थे, उनके बच्चों को यह भी मालूम नहीं था कि हमारी कोई दादी भी है और उसकी माँ ने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। क्यों? इसलिए कि उसे मालूम हो चुका था कि मेरा बच्चा मुझसे चलता है, मेरा बच्चा मुझसे करता है, इसलिए उसने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। वो बच्चा ये कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि मेरी माँ को मेरे बीवी बच्चे देखे ही नहीं, क्योंकि उसके तो एक ही आंख है। आखिर वो तो माँ थी, कब तक बेटे की जुदाई की बर्दाश्त करती। एक दिन वो अपने बच्चे का घर पूछकर उसके घर पे आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उसके बच्चे उसको देखकर हंसने लगते हैं। वो लड़का बाहर निकलता है और अपनी माँ को डांटना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये कह देता है, आखिर तूने मेरे घर आने की जुर्रत कैसे की? जा यहाँ से चली जा और आइंदा बाद यहाँ पर आना मत। वो उसकी माँ कहती है, बड़े पुरसुकून में जवाब देती है कि बेटा माफ करना, शायद मैं रास्ता भूल गई। फिर एक दिन ये हुआ कि उसी स्कूल की जानिब से, जिस स्कूल के अंदर उसकी माँ बावर्ची का काम किया कर रही थी, उसी स्कूल के अंदर उसको मीटिंग में शामिल होने की दावत मिली। तो लड़का मीटिंग में शामिल होने के लिए गया और अपनी बीवी से बहाना बना दिया कि आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं। जैसे ही स्कूल की मीटिंग खत्म हुई, वो बच्चा अपने घर की तरफ गया, यानी अपनी माँ के घर की तरफ गया। उसका कोई मकसद नहीं था कि चल मैं आज अपनी वालिदा से मिल लेता हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं, चल मैं आज अपनी वालिदा से मिल लेता हूँ। उसका कोई इरादा नहीं था, सिर्फ ऐसे ही जा रहा था। जब अपने घर के पास गया और अपने घर को बंद देखा कि इसमें तो ताला लगा हुआ है, तो पड़ोसियों से मालूम किया। पड़ोसियों ने बताया कि तेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। उस पर भी उसको कोई सदमा नहीं हुआ, उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। क्यों? इसलिए कि
क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा हो रहा था। उसके पड़ोसियों ने उसको एक चिट्ठी दी कि ले, जब तेरी माँ का इंतकाल हुआ था उसने ये चिट्ठी की थी और उसने कहा था कि मेरा बेटा आएगा, उसको ये दे देना। उस लड़के ने वो चिट्ठी खोली, उसमें लिखा हुआ था, बेटे मैंने तुझसे कई दफा मिलने की कोशिश की, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। आज जब तू बड़ा आदमी बन गया और तुझे अल्लाह ने इतना नवाज दिया तो आज तू इस तरह बन गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था जब मैं तेरे घर बिन बुलाए चली गई और तेरे प्यारे बच्चे मुझसे डर गए। मैं अपने आप को कोस रही थी कि मुझे इसके घर पे बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए था। हाँ, जब मुझे ये मालूम हुआ कि आज तू स्कूल के अंदर मीटिंग में आने वाला है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती थी कि मैं तुझसे मिलूं, मैं तुझसे बातें करूं, मैं तुझे देखूं, लेकिन फौरन मेरे दिल के अंदर ये बात आई, नहीं मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मेरी वजह से तू कई मर्तबा शर्मिंदा हो चुका है और मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं बिस्तर से खड़ी हो सकूं। मैं इतना बीमार हो चुकी थी कि मैं बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो सकती थी और ना मेरे घर पे कोई ऐसा बंदा था जो मुझे अपने बिस्तर से खड़ा करे। हाँ, आज मैं तुझे ये बात भी बता देती हूँ कि बचपन के अंदर तेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तेरी एक आंख चली गई थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत सदमा हो रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टरों से बात की, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी कि मैं तेरे लिए एक आंख खरीद सकूं। बिलाखिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि कुछ कीजिए, आप भी कुछ कीजिए। डॉक्टरों ने ये किया कि मेरी आंख को लिया और तेरे अंदर मेरी आंख को डाल दिया। जब तेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया मुझे बेहद खुशी हुई। मैं मारे खुशी के मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। लेकिन मुझे खुशी क्यों हुई? मुझे खुशी इस वजह से हुई, चलो मेरी आंख नहीं रही तो क्या हुआ, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे अपनी आंख की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी आधी जिंदगी तो कट गई, ये भी कट जाएगी, लेकिन मेरा बेटा तो दुनिया को देख लेगा। मेरे भाइयों, वालिदैन के साथ कितनी भी नाफरमानी कर लो, लेकिन वालिदैन इतने शफीक होते हैं, इतने मेहरबान होते हैं, वे फिर भी अपने बच्चे के साथ अच्छाई सुलूक करते हैं। आज जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी कदर कर लो। खुदा पाक की कसम, जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। आज होता क्या है? ये होता है कि वालिदैन जब जिंदा रहते हैं तो वालिदैन की खूब नाफरमानी करते हैं, बीवी बच्चों के साथ अय्याशी करते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, उन्हें खाना तक नहीं देते हैं। और जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है फिर वावेला मचाते हैं कि ये ऐसे थे। अरे मरने के बाद क्या होगा? मरने से पहले कदर करो, मरने के बाद कुछ फायदा नहीं। सिर्फ एक चीज ही ऐसी है, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को माफ कर सकता है, लेकिन अगर वो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा तो दुनिया के अंदर उसका अजर दे देंगे। वालिदैन चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उनके साथ फिर भी बदसलूकी का कोई हक नहीं है। कुरान कहता है वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि अगर तेरे वालिदैन तुझे शिर्क पर महसूस करें, शिर्क पर मजबूर करें, अगर तेरे वालिदैन तुझे शिर्क पर मजबूर करें कि तू उस परवरदिगार के साथ शिर्क कर, सिर्फ इस बात को तेरे वालिदैन की इस बात को मत मान, क्योंकि ये शिर्क है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फिर क्या फरमाया? मारूफा, उनके साथ बदसलूकी का हुक्म नहीं दिया कि अगर तेरे वालिदैन तुझे शिर्क पर मजबूर करें तो उनके साथ बदसलूकी कर। क्या फरमाया? कि उनके साथ अच्छाई बर्ताव कर। वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, और उनकी बात मान, उनकी पैरवी कर, उनके साथ बदसलूकी मत कर। इससे मालूम हुआ कि किसी भी हाल के अंदर वालिदैन की नाफरमानी करना जायज नहीं है। आखिर में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।